किसी को कोई भी डाउट हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है मुझसे पूछ सकता है। यस। सर हाँ यस बेटा। सर हमने आपको क्वेश्चन सेंड किया, वो देख लीजिएगा सही है कि नहीं। तो ठीक है, तो क्लास के बाद देख लूंगा। ठीक है, अभी तो क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद देख। ठीक है। ओके सर। हाँ, so now let me start a new topic, that is inter-process communication. A brief introduction I have given yesterday. Today we'll discuss in detail about this topic. So now let me share my PPT. Yes. Now is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So process synchronization. Synchronization means तालमेल बैठाना, है ना? So if we are doing some work in a collaboration, then we must have to follow some synchronization mechanism. अगर से कोलैबोरेशन में कोई काम हो रहा है और तालमेल आपस में नहीं है तो वो काम खराब होना ही होना। तो हियर आल्सो ओएस इज रनिंग सेवरल प्रोसेस, है ना? तो देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन, अदरवाइज इन द लास्ट यस्टरडे लेक्चर वी हैव सीन इनकंसिस्टेंसी हैज टू हैपन। ये होना ही होना है, रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट नहीं आएगा। तो व्हेन मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज, then inconsistent result might be produced. So process synchronization is a mechanism that deals with the synchronization of process. ठीक है? It controls the execution of the process running concurrently to ensure that consistent results are produced. ठीक है? So in which order these processes are executed so that we will get same result. तो क्रिटिकल सेक्शन मैंने कल बताया था आपको, वही चीज मैंने यहाँ फिर से रिपीट कर दी है। जो लोग कल नहीं ज्वाइन किए थे तो समझ जाएं क्रिटिकल सेक्शन का क्या मतलब होता है। It is a section of a program where a process acts as shared resource between. Suppose you have a 1,000 line program, but from line number suppose 100 to 200. So these section of your program ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आपको शेयर इस सेक्शन को शेयर करना है। शेयर्ड वेरिएबल यूज किया है आप। किसी का नाम जो है वो मोहम्मद साजिद अंसारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, so the following illustration shows how inconsistent result may be produced if multiple processes execute concurrently without any synchronization. तो मैंने कल एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल यहाँ पर है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको सबको ये एग्जांपल क्लियर हो गया था कल। यस, द सेम एग्जांपल हियर, केस 1, the execution order of this instruction may be P1, then final value of count case 2, case 3, case 4, case 5. It is clear from here that inconsistent results may produce if multiple processes execute concurrently without anything. So we have so many cases. First, P1 executes some instruction, after that P2 or P2, then P1. तो किस ऑर्डर में हम सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएं कि हमारा रिजल्ट जो है वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आए। तो रेस कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट टर्म इज रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन इज अ सिचुएशन वेयर the final output produced depends on the execution order of the instruction of different process. Several processes compete with each other. The above example is a good illustration of this. तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, दो प्रोसेस हैं, दोनों शेयर्ड वेरिएबल काउंट को एक्सेस करने के लिए कॉम्पीट कर रही है ना? तो रेसिंग हो रही दोनों के बीच। This is the best example of race condition. तो अगर एग्जाम में आता है what is the race condition, then you can just write all these points and then you give your example. This one. Okay, is it clear? यहाँ तक क्लियर है? Anyone having any doubt? बताइए। Yes या no? आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? Yes, sir. Okay. Now practice problem based on process synchronization. Problem 1 जैसे है, the following two functions P1 and P2 that share a variable P with an initial value of 2 execute concurrently.
तो b एक शेयर वेरिएबल है एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ b क्या है 2 है हमारे पास एंड दिस फंक्शन p1 एंड p2 दोनों को कॉन्करेंट दोनों फंक्शन इसको एक्सेस करना चाहते हैं. So the number of distinct values that B can possibly take after the execution is. यहाँ पे हम देख सकते हैं तो P1 then C is equal to B minus 1 then B is equal to 2 into C and here D is equal to 2 into B and then B is equal to D minus. So final value of B क्या हो? So here different execution order of the instruction of P1 and P2 produce different results. So case 1 the execution order of the instruction may be P1 1 P1 2 P2 1 P2 2. इसका मतलब क्या हुआ कि this is our 1. Let me just use the notation. This is 1. This is here also. ये भी 1 है P2 का और ये 1 है 2 है P2. तो P1 1 की मीनिंग क्या है हमारे पास? This means process P1 of function P1 executing this instruction. And then P2 1 after executing this process P1 suspend हो गया P2 ने फिर then P2 2 तो P2 ने क्या किया दोनों इंस्ट्रक्शन अपने सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर लिए 1 by 1 then P1 1. तो क्या होगा बताइए पहले P1 1 एग्जीक्यूट हुआ तो P1 1 तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए कौन बताएगा C की वैल्यू और B की वैल्यू ये दो वैल्यू हमारे पास है तो तो इनिशियल C की 1 वैल्यू हो जाएगी B की 1 गिवन हो गई देन D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into तो 4 हो 2 जाएगा 4 4 D is equal to 3 minus 1 that is 3 3 यहाँ पे आया देन फाइनल P1 1 हो गया हमारा तो B is equal to 2 into C that is कितना हो जाएगा 2 तो दो वैल्यू आ गई P की है ना आई नहीं आई क्लियर है तो ये क्या है आपका 2 आया यस सर अगर से इसको हम और एक्सक्यूट कर दें इसको यहाँ कर दें इसको इस साइड कर दें देन डिफरेंट रिजल्ट वी विल गेट यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर केस 1 केस 2 बनाकर तो अगर से इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूशन ऑर्डर दिस है P1 1 P1 2 इट मींस फर्स्ट P1 execute all the instruction then P2 execute all its instruction then final value is 3 आप चेक कर सकते हैं तो 2 minus 1 that is 1 1 2 3 ठीक है क्लियर है ना अब मान लीजिए P2 पहले एक्सिक्यूट होगा P1 तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए P1 executes आफ्टर P2 तो क्या होगी B की वैल्यू बताएं तो 2 आई 4 minus 1 3 3 minus 1 2 2 यस 2 तो पहले केस में कितनी आई थी 3 यहाँ 2 तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा तो ये हमारा बताने का मतलब है कि इन कॉन्सेप्ट अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो पहले केस में 3 देन 4 देन 2 तो डिफरेंट एक्सक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन P1 प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट केस 4 हमारा फिर 3 केस 5 3 केस 6 2 ठीक है अच्छा ये बताइए इसमें कितने इंस्ट्रक्शन है 4 है ना तो कितने कितने ऑर्डर हो सकते हैं कौन बताएगा 4 इंस्ट्रक्शन है तो कितने ऑर्डर हो सकते हैं यस 16 4 into 3 मेरे ख्याल से देखिए इसको ऐसे ऐसे काउंट कर सकते हैं जैसे वो इसको पहले इससे ये हो जाएगा एक्सक्यूट ये हुआ एक केस देन दूसरा क्या हो सकता है ये पहले हो जाए तो फनी फैक्टोरियल 4 है ना क्यों यही तो होगा डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे अगर 4 आपके पास 24 चीजें हैं इनको आपको अरेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे फैक्टोरियल 4 ये तो हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं ना तो अब हम यहाँ पे कितने केस बना रहे हैं अब यहाँ पे तो केस बनाया हमने कितने केस तो मैंने देखा कुछ केसेस मैंने यहाँ बनाए सारे केस हमने बनाए नहीं तो 6 केसेस बनाए हैं और मेरे ख्याल से 6 केस ही होना चाहिए 4C2 होगा शायद जहां तक यस 4C2 बिकॉज 2 प्रोसेस है इज इक्वल टू 4 into D divided by 2 into 2 that is 6 cases possible okay clear है not factorial 4 it is 4C2 ये तो पढ़ा ना मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ा है यस बताइए हाँ या ना
ये पढ़ा होगा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सर पढ़ा है। कैसे पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। तो 6 केस में देख रहे थे, कभी रिजल्ट 2 आ रहा है, कभी 3 आता है, फिर कभी 3 आएगा, फिर कभी ऊपर 2 या 4 आया हुआ है। तो अगर से if these two processes are not synchronized or they are not working in a synchronized manner, then we will get a different result. So distinct value that may be produced are 2, 3 and 4. So the number of distinct value is 3. तो यहाँ देखिए दो चीजें हैं. How many different values possible? 3. And what are the values of those different values? That is those 2 and 3 and 4. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेम क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपसे, ये वैल्यू चेंज कर दी आपकी यहाँ पर, then tell me what are the different values and how many different values are possible. Clear है? So in this example we have 6 cases and 3 different values, that 2, 3 and 4 are possible, and total number of different values 3. समझ आई बात? क्लियर है क्वेश्चन? यस आकिफ, आकिफ आर यू देयर? आकिफ है या नहीं है? मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम बेटे, हाँ या ना, हो या नहीं हो? Mohammed Adin, Smith, you are absent. You are not here. You are just log in and then leave. Ashwini Yadav. Ashwini Yadav. जी सर। Okay. जी सर। Ashraf Ahmed. यस सर। Ashraf. यस सर। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग लॉग इन हो तो रहो प्रेजेंट, अदरवाइज मैं क्लास में absent कर दूंगा, बता दे रहा हूँ. नदीम. Nadeem, now you are not responding. So let me share my screen again. तो ये एग्जांपल है आपका क्या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, अगर से नहीं होगा तो डिफरेंट वैल्यू की. देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? इफ मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, तो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. तो व्हाट प्रॉब्लम अकर in this critical section, तो हम देख रहे हैं. तो if multiple process with more than one process access the critical section concurrently, then results produced might be inconsistent. This problem is called critical section problem. ठीक है. Synchronization mechanism क्या क्या होती है? Synchronization mechanism allows the process to access critical section in a synchronized manner to avoid the inconsistent result. So now we will see so many synchronization mechanisms. With the help of this mechanism we will get a consistent result. तो ये रहेगा. Okay, so for every critical section in the program, a synchronization mechanism adds an entry section before the critical section and exit section after the critical section. The meaning of this is, suppose this is our critical section, then here entry section and this is exit. ये आपका है प्रोसेस, यहाँ पे आएगी या यहाँ से. तो क्रिटिकल सेक्शन में हम ये कोशिश करते हैं कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस रहे. If one process is in critical section, then no other process are allowed to enter. All processes have to wait in the ready. जो यहाँ पे क्यों बनेगा. So this is the meaning of critical section. Then critical section के ऊपर entry section है, critical section के बाद exit section. ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं. Yes, तो here आप देख सकते हैं pictorial view of critical section. तो critical section यहाँ पर है, then entry section, then exit section, and then rest of the part is the non. Okay. The entry section क्या होता है? It is act as a gateway for a process to enter inside the critical section. यानी entrance gate है. It ensures that only one process is present inside the critical section at any time. It does not allow any other process to enter inside the critical section if one process is already present. मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वही मैंने लिखा हुआ. What is the meaning of exit section? It acts as an exit gate for a process to leave the
process takes exit from the critical section, some changes are made so that other process can enter inside the critical section. जब जैसे ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे केबिन है और आप लोग असाइनमेंट चेक कराने आ रहे हैं हमारे पास 1 बाय 1, तो बाहर मैंने एक फ्लैग लगा रखा है, ठीक है? या कुछ ऐसा इंडिकेटर कर रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि जब अगर से वो फ्लैग आपका रेड है, तो मतलब कोई ना कोई इनसाइड है, ठीक? अगर से वो फ्लैग ग्रीन हो गया, तो कोई नहीं है इनसाइड। तो जब आप आएँगे, तो आने से पहले आप वो फ्लैग चेक कर लेंगे, ठीक है? कि इंडिकेटर वो हो। तो अगर से मैंने यहाँ से उसको रेड किया हुआ है, इट मीन्स आई एम बिज़ी और आई एम समवन इज़ इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, तो आप अंदर नहीं आए, ठीक? मान लीजिए अगर तो ग्रीन था, तो आप अंदर आए, आने के बाद आप फिर मैंने जब जैसे ही आप अंदर आए, तो मैंने उसको फिर रेड कर दिया और जैसे ही आप बाहर गए, फिर मैंने उसे ग्रीन कर दिया। तो जो भी प्रोसेस आएगा अंदर या प्रोसेस जो भी इन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आएगी, तो वो चेक कर लेगी कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जब कोई प्रोसेस काम करके निकल रही होती है, तो वो कुछ चेंजेस करती है। वो चेंजेस ही अलाउ करता है अदर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट सेंटेंस इन एक्सरसाइज। नाउ टेक 30 सेकंड एंड रीड ऑल दीस पॉइंट्स एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। ओके, नाउ क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो क्या क्या होता है क्राइटेरिया से? कोई भी आप सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, तो योर मैकेनिज्म मस्ट फॉलो ऑल दीज क्राइटेरिया। So any synchronization mechanism that is proposed to handle the critical section problem should meet the following criteria. The first one is the mutual exclusion, second one is the progress, and third one is the bounded weight. MPB तो याद रखिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। इसकी मीनिंग क्या होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि एक टाइम में एक ही चीज एक्सिक्यूट होगी, है ना? आपने पढ़ा होगा इसको प्रोबेबिलिटी में। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि सिस्टम की प्रोग्रेस होते रहने चाहिए। बाउंडेड वेट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट ना करना पड़े। अगर से सम प्रोसेस वांट्स टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, देन द वेटिंग टाइम ऑफ दैट प्रोसेस इज मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है? तो हम उसके वेट को बाउंड करेंगे कि हाँ ये इतने टाइम तक की हो, इससे ज्यादा ना होना। ये तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर से कोई प्रोसेस वेट कर रही है इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक? प्रोग्रेस मतलब एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जा रही है, उसका रिजल्ट आता जा रहा है। तो इसको चेक करेंगे आगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दिस मैकेनिज्म इंश्योर द प्रोसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन इन एन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। इट मींस ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम में मैं एक ही स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक करूंगा, ठीक है? बाकी सारे स्टूडेंट बाहर रहेंगे हमारे केस। द मीनिंग इज सेम। No other process can enter the critical section until the process already present inside it complete. जब तक उसका असाइनमेंट चेक नहीं हो जाएगा, तब तक वो कोई और स्टूडेंट हमारे पास नहीं आएगा कराने के लिए। तो वही चीज यहाँ। तो if one process is accessing some variable that is shared variable in the critical section, then no other process enter in that critical. Progress, the mechanism must ensure an entry of a process inside the critical section is not dependent on the entry of another process inside the critical. A process can freely enter inside the critical section if there is no other process present inside it. मतलब ये है, if critical section is empty, है ना, no process is there, then your mechanism must allow a process that wants to access the critical section as early as possible. ऐसा नहीं कि आपका क्रिटिकल सेक्शन बिजी है, फ्री है, तब भी आप अलाउ नहीं करते। आपका मैकेनिज्म जो है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होगा, एक मैकेनिज्म मतलब कि आप एक सॉल्यूशन, एक कोडिंग करके एक सॉल्यूशन देंगे, आप एक मॉडल देंगे, तो वो मॉडल अगर चेक करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, अगर से वो एम्प्टी है, तो फॉरन ही जो प्रोसेस एक्सेस करना चाहती है उसको अलाउ करेगा। अ प्रोसेस इंटर द क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ इट वांट्स टू इंटर। अगर से कोई प्रोसेस को एक्सेस नहीं करना है क्रिटिकल सेक्शन को, तो उसको नहीं एक्सेस करना है, वो उसको बाईपास करेगा, ठीक है? क्लियर? तो कोई स्टूडेंट को असाइनमेंट चेक नहीं कराना है, तो उसको फोर्सफुली हम चेक नहीं करेंगे। ये इसकी मीनिंग। A process enter the critical section only if it wants to enter. A process is not forced to enter inside the critical section if it does not want to enter. Then bounded weight. The mechanism should ensure the weight of a process to enter the critical section is bound. It means it is finite. A process
gets to enter the critical section before it gets over. So all these criteria must be satisfied by a synchronization mechanism. So we have so many mechanisms that is already developed. We will study those mechanisms one by one in the coming slide. But in case if you want to develop your own synchronization mechanism, then you have to follow all these three criteria. Now, any doubt, any confusion? So I will explain again. I don't have any problem in explaining. Yes, यस सर M equal exclusion, इसको याद सर रख लीजिएगा. बाउंडेड M वेट की बता दीजिए सर एक बार बाउंडेड वेट का मतलब ये है कि अब आपकी जो पॉलिसी है, लिमिट होगी सर हाँ उसको ऐसा नहीं कि उसको वेट इनफाइनाइट है. जैसे कोई किसी को असाइनमेंट चेक कराना है तो कितना वेट करेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, इसका नहीं, उससे वो वेट ही करता रहे हमेशा. ठीक है, उसका टर्न आना चाहिए. तो आपकी मैकेनिज्म ये देख चेक करती है कि कौन सी प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक वेट कर रही है, उसको Yes, भी sir. चांस मिलना चाहिए. ऐसा हो रहा है तो कुछ मैकेनिज्म लगाइए उसको कि उसको भी इंटर कर सके आप. ठीक है, या अंदर मेरे तक मैसेज कोई पहुंचा देगी, सर बाहर एक स्टूडेंट बहुत देर से वेट कर रहा है. तो मैनुअली तो ऐसे ही होता है ना, मैनुअली. बट वहां पे क्या है, सॉफ्टवेयर है, वो सब चीजें अपने से ऑटोमेटेड फॉर्म में करेगा सर, सारी की सारी चीज. तो ये आपके सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना है सारी चीज, कौन सी प्रोसेस वेट कर रही है, कितने टाइम तक वेट कर रही है, किसको इंटर करना है, किसको इसका काम हो चुका है उसको वहां से निकालना है. ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय योर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. इट मींस सॉफ्टवेयर जो कि आप कोडिंग करके बनाएंगे. क्लियर है? यस, ओके. यस सर Now, some important point: mutual exclusion and progress are mandatory criteria. Means your proposed synchronization solution must satisfy these two criteria. What are those? Mutual exclusion and progress. They must be fulfilled by all the synchronization mechanism. अगर से कोई मैकेनिज्म आपने डेवलप की है, अब वो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, then your synchronization mechanism is not sound. वो अच्छी नहीं. बाउंडेड वेटिंग इज द ऑप्शनल वन. ये ठीक है, नहीं भी कर सकेगा तो चलेगा, बट दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस ये दोनों जरूर जरूर सेटिस्फाई होंगे. हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू मीट द क्राइटेरिया. तो हम कोशिश करेंगे तीनों को तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाए, बट अगर दो हो रहा है तो तब भी काम चल जाएगा. बट इट इज ऑलवेज गुड टू मीट ऑल द क्राइटेरिया. ठीक है, तो अगर से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर के मार्क्स का, तो आप व्हाट आर द ऑप्शनल या व्हाट आर द मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन. भाई 14 हो जाएगा सर आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हो, क्या मैं बता सकता हूँ एक बार नहीं आप लोग दिखेगा मोहम्मद जुबेर. कैसे डिस्टरबेंस होता है क्लास में, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग म्यूट कर लिया करो. कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल अनम्यूट करो अपने आप को और मुझसे पूछो क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं. ये चीज अपने प्रैक्टिस में लेके आ जाइए. अब हर चीजें ऑनलाइन ही चल रही हैं, सेकेंड वेव कोरोना की चल रही है. अब कुछ भी चीजें, अब मीटिंग हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, कहीं इवेंट हो रहा हो, आपका अपना इवेंट हो रहा हो, हर चीज ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी वो होना है. तो कैसे ऑनलाइन में क्लास को अटेंड करना है, उस मीटिंग को अटेंड करना है या इवेंट को अटेंड करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस में लाइए चीजों को. कैसे ऑनलाइन मीटिंग में बैठना है, अपने आप को हमेशा म्यूट किए रहिए. जब बोलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, भले आपने म्यूट किया हो तब भी चेक कर लीजिए आप म्यूट है कि नहीं म्यूट. उसके बाद फिर कुछ बात बोलिए आप कहीं और किसी में, और जब आपको कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए. तो ये अपने प्रैक्टिस में लेके आ जाइए आप. ठीक है, ओके. नाउ हियर सम वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, लॉक वेरिएबल. तो लॉक वेरिएबल क्या करता है? इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. इट यूज लॉक वेरिएबल टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग पैरेलली. जो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं उसके बीच का सिंक्रोनाइजेशन कैसे करता है ये देखते हैं. हाउएवर इट कंप्लीटली फेल्स टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन. कैसे फेल होगा वो भी चेक करेंगे. तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो कोडिंग करके बनाया गया, वो ये है कि लॉक इज अ वेरिएबल, इट इज अ फ्लैग वेरिएबल, है ना. इट डिसाइड्स whether the critical section is empty or not. तो अगर से लॉक की वैल्यू 0 है तो क्या है इसकी मीनिंग, और लॉक की वैल्यू 1 है तो क्या.
देखिए while lock is not equal to 0, आगे क्या लगा है सेमी कॉलर। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कोडिंग किसकी स्ट्रांग है बताएं। while lock is not, मान ली लॉक वैल्यू 5 है तो क्या होगा, सपोज लॉक वैल्यू ऑफ लॉक इज 5, देन व्हाट इज हैपन, बताएगा। assume that the value of lock is 5, बताइए तो क्या होगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा कि नहीं करेगा ये बताइए। मान लीजिए प्रोसेस P1 आई, प्रोसेस P1 आती है और यहाँ चेक करते हैं लॉक की वैल्यू, पहले यही तो हमारा एंट्री सेक्शन है। तो P1 ने इसकी वैल्यू चेक की, लॉक की वैल्यू क्या है 5, तो P1 इज अलाउड टू इंटर इन क्रिटिकल सेक्शन और नॉट, बताएं। सर करे, सर इंटर करेगा इंटर, ओके। और कोई ऑप्शन, और किसी का आंसर बताएं। यस बताइए, करेगा नहीं करेगा प्रोसेस P1, करेगी कि नहीं करेगी इंटर क्रिटिकल सेक्शन में। ये सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये तो सिंपल कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पर। एंड वैल्यू ऑफ लॉक इज 5, देन व्हाट हैपन, ये मैं पूछ रहा हूँ आपको। कौन बताएगा, और ये किसी ने बताया है, श्वेता आपने बताया है कि इंटर करेगा, श्वेता। किसी को और को नहीं पता है। अरे बेटा अभी तो सिर्फ सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में बीसीए में पढ़ के आई होगी, एमसीए वाले बीसीए में पढ़ के आए होंगे। देवीना, देवीना यस सर, बताइए, इफ द वैल्यू ऑफ लॉक इज 5 यस सर करेगा सर इंटर। अच्छा करेगा इंटर, ओके। रूषा, अरे यार मेरे आप, यस सर रूषा प्रोसेस P1 इंटर करेगा, करेगी क्रिटिकल सेक्शन में। बताइए। देखिए प्रोसेस लॉक वैल्यू 5 है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, बताइए दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, बताए। ट्रू है सर। ट्रू है तो क्या होगा, ये सेमीकोलन मतलब क्या होता है, कहाँ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, कर्सर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, बताइए। जब कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, यस सर। आएगा। आएगा सर। बेटे सेमीकोलन का मतलब होता है इनफाइनाइट लूप तक चल जाएगा ये। व्हाइल लूप के बाद आप अगर सेमीकोलन लगाते हैं तो कहाँ चला जाएगा ये, व्हाइल 1, और आपने ये कर दिया अगर से, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या चला, कहाँ चला जाएगा ये। कभी देखा है व्हाइल लूप के बाद इनफाइनाइट, अगर ये नहीं होता तो आता ना, जब लूप लगा दी तो फिर क्या, ये तो इसी में घूमता रहेगा सर इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट लूप में, मतलब वो उसी में स्टक कर जाएगा। प्रोसेस P1 ये लूप की कंडीशन बार बार चेक करती रहेगी और उसी में स्टक कर जाएगी। तो कोडिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए तभी आप सब चीजें कर पाएंगे, ओके। तो P1 is not allowed to enter in critical section because it is getting stuck in this while loop, because loop हमारा कहाँ तक चल जाएगा, इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो it means when lock is equal to 0 then process is allowed to enter in critical section, when lock is equal to 1 then process is not allowed to enter in critical section। तो इसको हम एग्जांपल से आप बताना चाहें आपको, तभी देखिए का एग्जांपल, जैसे लॉक वैल्यू मान लेते हैं इनिशियली क्या है 0 एंड P1 यहाँ पे आई, P1 ने चेक किया लॉक, लॉक इज इक्वल टू 0, तो लॉक इज नॉट, ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स, बताइए अब लॉक की वैल्यू क्या है पहले इनिशियली, यस ट्रू और फॉल्स, क्या कंडीशन होगी। प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या आप लोगों ने, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये पढ़ा होगा ना, किया होगा। एक सोर्स कोड दे देते थे और उसमें काउंटर की वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, व्हाइल लूप दे दिया है इसकी फाइल, तो ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स होगी, बताइए।
फॉल्स फॉल्स होगी। होगी ना, फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये आगे इसमें स्टक नहीं करेगा, कहाँ आ जाएगा, लॉक पे आ जाएगा। लॉक पे क्या कर देगा ये 1। तो P1 ने लॉक की वैल्यू 1 कर दी। 1 करने के बाद कहाँ आ गया, P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। नाउ P2 आया, P2 ने चेक किया लॉक की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब क्यों 1 है लॉक की वैल्यू, देखिए यहाँ पर लॉक की वैल्यू 1 हो गई है। P1 update the value of lock before entering in the critical section. So initial value of lock is 0. P1 updates the value of lock and its value becomes 1. Now P2 arrives in the entry section and check the value of lock. So now its condition is true. 1 is not equal to 0. Yes. Now P2 is getting stuck in this file. P2 इसमें stuck कर जाएगी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब P1 अंदर है तो P2 या P3 या P4 कोई भी आ जाए तो वैल्यू लॉक की कितनी रहेगी, अभी तो 1 ही है ना, लॉक की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अभी लॉक वैल्यू तो कोई चेंज कर नहीं रहा है हमारा, तो P2 P3 P4 सब कहाँ आ जाएंगी, इस लूप के अंदर फंस जाएंगी। और क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस है विद P1। नाउ P1 सपोज फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, देन P1 यहाँ पे आई। अब P1 लॉक वैल्यू फिर क्या कर दी 0। All these changes are done by P1। तो P1 ने लॉक वैल्यू 0 की। अब P2 क्या कर रही थी, P2 कहाँ थी, वाइल लूप फंसी हुई थी, बार बार लूप वैल्यू, इट इज चेकिंग द वैल्यू ऑफ लॉक अगेन एंड अगेन। नाउ एज सून एज द वैल्यू ऑफ लॉक इज 0, दिस कंडीशन फॉल्स। तो P2 कहाँ आ जाएगी, अंदर आएगी और क्या कर देगी P2 लॉक वैल्यू फिर 1 कर देगी। ठीक है, तो ये P2 की वैल्यू। अच्छा P2 1 कर दिया, मान ली दोबारा अगर से P1 यहाँ से फिनिश हो गई, मान ली P1 दोबारा आना, P1 needs this access critical section again, then P1 चेक करेगी वैल्यू कितनी, लॉक वैल्यू 1 है, then P1 has to wait। जब तक P2 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आएगी और आने के बाद लॉक वैल्यू 0 नहीं करेगी, जब तक कोई प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करता। P2 ने अगर इसको 0 कर दी तो P1 फिर आ जाएगी हमारे। क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। क्लियर। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि लॉक की वेरिएबल की आप कोडिंग के थ्रू आप कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोसेस आएगी तो चेक करेगी लॉक की वैल्यू, अगर लॉक वैल्यू 0 है इट मींस क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी, देन इट इज अलाउड इन द क्रिटिकल सेक्शन। बिकॉज़ आपने कंडीशन लगा रखी है इनफाइनाइट लूप, तो वो जाएगी ही नहीं, कंडीशन इज फॉल्स। व्हेन वैल्यू ऑफ लॉक इज नॉट 0 देन इट इज ट्रू, देन दैट प्रोसेस गेटिंग स्टक इन या गॉट स्टक इन व्हाट, इन व्हाइल लूप। इट मींस इट अज्यूम दैट एक प्रोसेस, अभी हमने चेक भी किया एग्जांपल से, ऐसा हो भी रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इंश्योर हो गया, हुआ है नहीं, हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रहेगी, यहाँ तो हो रहा है ना ऐसा। अगर से एक प्रोसेस है तो क्या हो रहा है, वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं कर रहा है, ये तो कर रहा है क्यों बेटे, यस सर। बताइए। Yes, sir. बट मैंने आपको बताया था अभी आपको कि इंक्रीमेंट अगर से आप करते हैं तो लॉक इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सेवरल माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगी ना। जैसे हमने लिखा था ना इंक्रीमेंट का मतलब हमने लिखा काउंटर प्लस प्लस, तो इसके लिए 3 इंस्ट्रक्शन थी ना। पहले मूव द कंटेंट ऑफ दिस वेरिएबल टू रजिस्टर, इंक्रीमेंट द रजिस्टर, देन अगेन मूव द इंक्रीमेंटेड वैल्यू फ्रॉम रजिस्टर टू वेरिएबल, ये तो था ना, देखा था आपने इससे पहले, यस चेक किया था ना आपने। तो अब देखिए मान लेते हैं, अब हम ये सब चीजें यहाँ यहाँ से हटा दें। अब मानते हैं कि लॉक P1 आया पहले एंड लॉक वैल्यू 0 थी हमारे पास, तो P1 ने चेक किया लॉक की वैल्यू 0 नहीं है, फॉल्स, 0 है तो फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आने के बाद P1, हमने बताया था कि CPU बाउंड एंड IO दोनों चल रहा था ना हमारे साथ। मान लीजिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग व्हाइल लूप P1 कहाँ चली गई, IO के लिए, कुछ इंटरप्ट वगैरह अगर हो गया होगा, इट माइट बी पॉसिबल, इंटरप्ट मे अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो P1 यहाँ चले गए, तो लॉक वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। P1 ने इसको चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ पे आई और व्हाइल और लॉक की वैल्यू 1 करने से पहले कहाँ चली गई वो, इट इज गोइंग
वेंट फॉर IO इनपुट आउटपुट के लिए कुछ ऑपरेशन करना होगा उसको। देन P2 कम, P2 आई, P2 चेक किया तो लॉक वैल्यू कितनी है अभी बताइए, लॉक वैल्यू कितनी है? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉक? सर 0 ही होगा। जीरो ही है क्योंकि P1 ने भी इसको अपडेट नहीं किया है। बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ लॉक इट वेंट फॉर IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की चली गई। देन P2 चेक किया लॉक वैल्यू, P2 क्या किया, ये कंडीशन फॉल्स, P2 अंदर आया, P2 लॉक वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी, और कहाँ चला आया, सेक्शन में चली जाएगी। नाउ P1 आफ्टर फिनिशिंग IO ऑपरेशन अगेन कम बैक टू वेयर है, इसने क्या चेक किया, लॉक वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसने लॉक वैल्यू फिर से 1 कर दी, कोई बात नहीं है। ये भी कहाँ चली आई, ये नहीं आई, यस है ना? सर। So it means it does not support mutual exclusion because of interrupt. Interrupt may occur at any point of time. कभी भी आपके whole execution के प्रोग्राम में interrupt हो सकता है। So that why lock is the simplest synchronization mechanism to understand the synchronization. आपको मैंने बता दिया पहले, अगर से interrupt नहीं होगा then it will work fine. But अगर बस interrupt हो जाएगा तो ये fine नहीं, because it will, हमने बताया आपको कि 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो गई एट ए टाइम, एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट बी इंश्योर्ड। इट मींस वन प्रोसेस, इफ वन प्रोसेस इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी अलाउड टू इंटेंड। मैंने सारी चीजें यहाँ लिखी भी हुई है, आप यहाँ चेक कर लेंगे अगर से। लॉक वेरिएबल क्या है, इनिशियल वर्किंग सीन 1, सीन 2, सीन 3, ठीक है। तो फेल्योर ऑफ मैकेनिज्म क्या है, यहाँ तक क्या है, ये सारी वर्किंग बता दी मैंने जो मैंने पहले बताया था। तो इंटरप्ट नहीं हुआ तब की बात बताई मैंने। देन इंटरप्ट हो गया तो फेल्योर कैसे हुई, तो ये सीन 1, सीन 2, सीन 3, देन बोथ द प्रोसेस गेट टू प्रेजेंट इनसाइड द प्रोसेस। ये सब मैंने लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू आर, आई विल शेयर, मैंने PPT शेयर कर चुका हूँ, इसको देखिए। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज मैंने लिखी हुई है, आप कोई अलग से कोई चीज लिखी नहीं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जाइए और फिर मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, ठीक है। दीज आर द रेफरेंसेस तो मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। यस, बताइए बेटे, किसी को कोई डाउट है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। श्वेता, यस सर। कोई डाउट है बेटी अभी तक जो मैंने नहीं। पढ़ाया है? नहीं सर। ओके, सर अभी तक बस आप वो अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ वो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बता दूंगा। ओके सर। तो, आप सभी लोग जो है, मैं जो PPT शेयर करता हूँ बेटे उसको देखिए, पढ़िए। मैं बताने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। पर जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप पढ़िए, और मैं इजी वे में ही पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ कोशिश करता हूँ पढ़ाने के लिए, आपको समझ में आ जाए।